So hi guys, welcome to hashtag Mag16 part 4 of this live session series we had this month. February is the month for e-commerce marketing. So we choose different people to come and talk. So Santosh Yadvanshi is going to talk about e-commerce conversion optimization for e-commerce businesses specifically, how to optimize for conversions. So he'll be taking us through his presentation maybe for the coming 30 minutes or 40 minutes or whatever time it takes, and then we'll take up the Q&A question and answers. So people who are watching on Facebook would request you to get on Zoom because it will be easy for us to answer the questions better. So I'll share the link in Facebook below that live video itself, so you can come and join in Zoom and get your questions answered. So yeah, Santosh ji, over to you, and thank you very much for coming on the hashtag Mag series. So it's a pleasure to have you on board, and I know this will be a lot of value for people who are watching it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now I'm going to share my screen. Yeah, you can share it. Today we are going to cover this topic, like what is an online store conversion rate, online benefit of conversion rate optimization, e-commerce conversion funnel, type of conversion, online store optimization checklist, e-commerce analysis approach, e-commerce conversion key metrics, quantitative data analysis, enhance e-commerce reports, e-commerce conversion benchmark by industry, e-commerce conversion rate by country, and region for shopping cart abandonment, and e-commerce checkout page optimization. Okay, these are the topics we are going to cover, and now we can start. Yeah, First, sure. conversion rate is defined as a percentage of visitors that land your website who completed a desired action. It could be different by the website owners or business owners. Okay, in e-commerce there is a typical conversion for the e-commerce website that is online sale, a user adding a product to add to cart, a user adding item to their wish list, email signups, social media shares, and any KPI your company finds valuable. These are the conversions. Okay, एंड अगर मैं बात करूं और कन्वर्जन्स की जो डिफरेंट इंडस्ट्री की, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या कुछ और इंडस्ट्री हो, तो वहां पे उनके लिए वैल्यूएबल कन्वर्जन्स हो सकता है साइन अप हो या ईमेल कलेक्ट हो या फिर किसी ने लीड्स फाइंड आउट करी हो उनका हो। तो ये सारी चीजें सबके लिए अलग अलग कन्वर्जन्स होते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वाइज वैरी करते हैं। ओके, for the e-commerce industry, main purchase is the head conversion, उसके बाद से सब conversions आते हैं, right? And इसके बाद बात करें benefit of e-commerce, benefit of conversion rate optimization. conversion rate optimization क्यों जरूरी है, उससे क्या benefit होते हैं? सबसे पहले कि अगर आपकी साइट ऑप्टिमाइज है, प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज है, चेकआउट प्रोसेस ऑप्टिमाइज है, देन योर कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन प्रॉफिटेबल होगा, आपका सीपीए डाउन हो जाएगा, आपका जो वेबसाइट का प्रॉफिट्स है या आरओआई है दैट विल बी इंक्रीज, एंड आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनको डोमिनेट करोगे, राइट? एंड बेटर रिजल्ट, जितना ट्रैफिक आ रहा है, अगर आपके पास 5000 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है, तो सेम ट्रैफिक में एक यूजर एक्सपीरियंस एंड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, वो सारी चीजें करके आप बेटर रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं, राइट? गोवर्धन जी, अगर आपको डिस्कशन बीच बीच में करना हो तो मेरे को रोकिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव होता चले। Yeah, definitely I will बीच में मैं इंटरेक्ट करूंगा ताकि it will be more easy. ओके श्योर। उसके बाद से हम आते हैं e-commerce conversion funnel. For the there is so many conversion funnels are there in the industry. It's
very industry to industry, service to service. Okay, for the e-commerce, we can conclude in a 4 section: landing page, product page, shopping cart, and purchase, because these are the 4 key metrics. So conversion funnels में landing page, because if you are running an e-commerce store, then you have to run carousel ads. जब carousel ads run होगा तो obvious बात है, मैं carousel ads में product page पे land कराते हैं हम लोग, landing page जो भी होगा, उसके बाद से product page, shopping cart and purchase, right? अगर बात करें type of conversion की, तो ये 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो कन्वर्जन एंड माइक्रो कन्वर्जन। दोनों का अलग अलग अपनी जगह पे वैल्यू है, राइट? क्योंकि दोनों को मिक्स करके बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल होती हैं, राइट? अगर मैं बात करूं मैक्रो कन्वर्जन की, तो दीज आर द वन ऑफ दैट मैटर्स बिकॉज दे अफेक्ट योर रेवेन्यू डायरेक्टली, ओके? क्योंकि वहां पे अगर मैक्रो कन्वर्जन की बात करें तो वहां पे परचेज होता है, राइट? मोस्टली परचेज होता है, या रिक्वेस्ट करते हैं कोड के लिए, एक लीड जनरेट्स होती है आपके लिए, राइट? या कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करता है, तो ये मैक्रो कन्वर्जेंस में आते हैं। अगर माइक्रो कन्वर्जेंस की बात करूं तो दिस यूजुअली इन्वॉल्व इन अ स्मॉल इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड योर बिजनेस, राइट? कोई साइन अप करता है आपकी ईमेल लिस्ट के लिए, या आपके ई कॉमर्स स्टोर पे कोई अकाउंट क्रिएट करता है, या एड टू कार्ट करता है, या एड टू विश लिस्ट करता है, या फिर सोशल मीडिया पे वो लाइक करता है, कुछ कमेंट करता है या शेयर करता है, राइट? दीज आर द माइक्रो कन्वर्जन्स। यहाँ दोनों जगह से हम लोग बेनिफिट कर सकते हैं अगर आपका माइक्रो कन्वर्जन हो रहा है, राइट? इफ यू आर गेटिंग if someone is interacting with the your Facebook ads, वो कमेंट कर रहा है या फिर वो लाइक कर रहा है, तो you get an option, right? In a Facebook or Google ads account, you can create the custom audience, right? Custom audience आप create कर सकते हैं on the basis of someone is who interacted your with your ad post or visited your profile. तो वहां से आप उनको फनल में डाल के आप फर्दर मूव करा सकते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, राइट? तो माइक्रो कन्वर्जेंस भी बहुत जरूरी होता है एक कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में, राइट? ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब ये हमने फनल तक कवर किया, अब आते हैं कि आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या आप सेगमेंट बना सकते हैं, किन किन चीजों को आप लोग चेक कर सकते हैं। आप जनरल ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट, I'll share the checklist. It's a too long, it's around 200 point. Okay. So just I took the major points, okay? And mobile optimization checklist, homepage optimization checklist, Okay. listing and category page optimization checklist, Yeah. search result page optimization checklist, product page, cart optimization, and checkout optimization. Okay. And now I'm sharing another list. Just wait for a moment. Okay. Just wait for a moment. Yeah, sure. These are the checklist. Okay. जो major points मैंने cover किया था, it's a 150 points. So okay. I'll share this PDF to you. Okay. Okay. So you can do the checklist whenever you are going to optimize your website or online store, right? तो यहाँ पे आप लोग basic generals, इनके बाद mobiles, search result page, and product page optimization and checkout page optimization.
राइट। Okay. कुछ कुछ मैं एग्जांपल्स भी, आई शो द एग्जांपल्स, कुछ प्रोडक्ट पेज के, कुछ चेकआउट पेजेस के, तो वो एक समझ में आएगा कि नॉर्मल चेकआउट पेजेस कैसे होते हैं और ऑप्टिमाइज चेकआउट पेजेस कैसे होते हैं, या प्रोडक्ट पेजेस कैसे होते हैं। ओके, Yeah, yeah. या सो So very exhaustive list आपने बनाया उसका मतलब। नहीं, I got that list from the Moz. Okay, तो उनका एक बहुत ही अच्छा सा मेरे को पीडीएफ मिला था, तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट वहां से ली, एंड इट इज फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड। आप कह सकते हो उससे एक बेस्ट जो स्टोर होता है वो बन के आएगा। Okay, okay. राइट, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। राइट, इसके बाद हम लोग आते हैं एनालिसिस अप्रोच, क्योंकि जब आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपको एनालिसिस की जरूरत होती है कि आपका जो यूजर है आपकी साइट्स पे आ रहा है तो वो कहाँ से ड्रॉप आउट हो रहा है, वो कहाँ से आपकी साइट पे एग्जिट कर रहा है, वो होम पेज आ रहा है, प्रोडक्ट पेज आ रहा है, या एड टू कार्ट से एग्जिट कर रहा है, या चेकआउट से एग्जिट कर रहा है, तो आपको वो एनालिसिस करनी जरूरी है। Okay, okay. तो वो एनालिसिस के लिए आप जो अप्रोच कर सकते हैं वो लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज, शॉपिंग कार्ट एंड परचेस। ओके, तो अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है यूजर कहाँ से लैंडिंग पेज पे आ रहा है, वो क्या आइटम देख रहा है, क्या व्यू कर रहा है, वो शॉपिंग कार्ट पे जा रहा है तो उसका एक स्मूथ उसको प्रोसेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या वो ऐड कर रहा है, कौन कौन से आइटम वो देख के क्या क्या चीजें ट्राई कर रहा है, तो वो आपको ये सारे एनालिसिस करने की जरूरत है। जब आपको एक फाइंडिंग्स मिल जाएंगे तो आप बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं चीजों को। एंड उसके बाद हम आते हैं कि एक बार पीछे वाला स्लाइड में चलेंगे संतोष जी। यस श्योर। हाँ, तो इसमें लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज, शॉपिंग कार्ट, परचेस, मान लो कि एनालिसिस इन द सेंस लाइक कितना लोग लैंडिंग पेज से प्रोडक्ट पेज तक जा रहे हैं और राइट, कितना लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, या कौन सा जगह पे लोग क्लिक कर रहे हैं, या मतलब हीट मैप्स देखने का, ये सब चीजें इसमें आएंगे। मतलब एनालिसिस मतलब कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइक। हाँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने गूगल एनालिटिक्स का एक एग्जांपल दिया कि आपको कौन कौन से मैट्रिक्स चेक करने हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स चेक करने हैं। आपको ट्री मैप चेक कर रहा है, ट्री मैप में कहाँ से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं वो लोग, कितना परसेंटेज है। ओके, रिवर्स फनल भी आपको चेक करनी है, ओके, स्ट्रेट फनल भी चेक करनी है आपको। श्योर, श्योर। एंड अगर ई कॉमर्स कन्वर्जन की मैट्रिक्स की बात करें, जहां आपको चीजें फाइंड आउट करनी है, आपको वेबसाइट ट्रैफिक देखना है कि वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, या फिर सर्च एड से आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, या फिर रेफरल आ रहा है, या किसी और सोर्स से आ रहा है। राइट, फाइंडिंग आउट द सोर्स, वेयर इज इट। ओके, यस। एंड उसके बाद कन्वर्जन रेट कितना है, इंडस्ट्री वाइज आप कन्वर्जन रेट को मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप। ये सारा टाइम टू परचेज करने का एक ड्यूरेशन कितना है, वो फर्स्ट डे में विजिट कर रहा है, सेकेंड डे में विजिट कर रहा है, या 10 डेज में विजिट कर रहा है, या 12 डेज में विजिट कर रहा है। मोस्टली 80% यूजर जो आपकी साइट पे आते हैं, 80% कन्वर्जन जो भी होता है वो 12 डेज में हो जाता है अप्रोक्सीमेट। ओके। राइट, While you do the retargeting and all. हाँ, तो वो 80% हो जाता है। So mostly people don't purchase in the first instance, but people There is hope. 74% of ratio Okay. don't purchase on first time. Okay. So this is something people should note down when someone is watching this, because many people think that you in the first attempt it is थोड़ा सा happening. it's a like boring session because there are no many other things like Facebook results and वो सारी बातें नहीं हो रही, अभी कुछ डिफरेंट टॉपिक चल रहा है तो वो थोड़ा सा होगा बोरिंग सा। No, no, no. बट ये Don't think it's चीजें बहुत boring. सारी काम की हैं। Santosh ji, don't think it's boring because people don't talk on this topic. This is very important because people lose hope
because they think that in the first instance itself you are not getting conversions. हमको conversions नहीं मिल रहा है first time, पहले दिन में, second दिन में, तो they will stop doing it, and remarketing में जितना benefit मिलेगा वो सब they will lose it. So it's something important, yeah. I think before going for the ads, okay, first you should do some optimization कि आपका साइट का जो भी एक चेकलिस्ट है, एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है, आपका प्रोडक्ट पेज कैसा होना चाहिए, आपका चेकआउट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उस पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, then they can get the conversion. Yeah, yeah. I think lakhs of Facebook advertiser in the India, अगर इंडिया की बात करो तो मेरे को पता भी नहीं कितना एग्जैक्ट नंबर, बट 10-20 lakhs के आसपास तो जरूर होंगे, राइट? एंड एवरीवन इज जस्ट, उसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं तो साइट पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बस प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया तो एड रन करना है कोई एनालिसिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, और वही लोग रोते हैं सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही। ओके, तो उससे पहले बहुत सारी चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर कन्वर्जन की बात करेंगे तो कन्वर्जन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एड से नहीं आ सकते। आप सिर्फ एड से आप कन्वर्जन रेट्स रिड्यूस नहीं कर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट का रेट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी साइट पे वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क विद द लॉजिस्टिक कंपनी, यू हैव टू वर्क ऑन अ वेबसाइट, यू हैव टू वर्क ऑन एड्स। बस आ गया तो आप सॉरी कैरी ऑन। ओके, तो इन सारी चीजों पे आपको वर्क करना है। अब ऐसा नहीं कि रिजल्ट सिर्फ एक ही रीजन है कि एड चला दिया और वो आपको रिजल्ट्स आने लगे। आपको सब कुछ फोकस करना है। इसके बाद से आपको जो मैट्रिक्स देखना है वो कॉस्ट पर कन्वर्जन, एवरेज नंबर ऑफ पेज विजिटेड, कि एक कस्टमर आ रहा है, एक यूजर आ रहा है तो वो आपके कितने प्रोडक्ट्स के पेजेस को विजिट कर रहा है, राइट? तो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो सब आप देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि फेसबुक एंड गूगल दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का, कि टाइम स्पेंड कितना किया हुआ है। टाइम स्पेंड के बेसिस पे यू कैन मेक द कस्टम ऑडियंस, राइट? एंड उसके बाद उनका लुक अलाइक बना के आप और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आप टॉप 10%, 20%, 25% बना के आप टारगेट कर सकते हैं, राइट? बट वो बनाएंगे कैसे? जब आप यहाँ पे एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको डेटा नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे करेंगे? राइट? फेसबुक ऑप्शन देता, ऑटो ऑप्शन, ठीक है, बट वो सारी चीजें तो आप एनालिसिस करोगे, आप की मैट्रिक्स वो हैं आपके, वो आपको देखना ही देखना है। शॉपिंग अबेंडन कार्ट का रेशियो देखना है, कि कितना अबेंडन कार्ट रेशियो है। पता चल रहा है साइट पे 1000 लोगों ने एड टू कार्ट किया, बट परचेज 20 लोगों ने किया है, तो यू हैव टू वर्क ऑन अ वेबसाइट। फिर अबेंडन कार्ट रेशियो कितना है, एवरेज बाउंस रेट कितना है, रिपीट विजिटर रेशियो कितना है। सो ये जो बाउंस रेट हो या अबंडेंस कार्ट रेट हो, इसका कोई बेंचमार्क है क्या जो आप लोग लेके चलते हैं? सर ये डिफर करेगा, ये मतलब डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, राइट? एवरेज बेंचमार्क है, आप बहुत सारे गूगल्स पे आप सर्च करेंगे, आपको शॉपिंग कार्ट का अबेंडन कार्ट रेशियो मिल जाएगा, एवरेज बाउंस रेट मिल जाएगा, रिपीट विजिटर रेशियो मिल जाएगा। ये सारा कुछ कंपनी ऐसी हैं जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का भी रेशियो मतलब दे देती। बहुत सारी कंपनीज हैं डेटा की जो ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं, बट अभी उतना आप नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ एक आइडिया के लिए है, एक इंडस्ट्री की नॉलेज के लिए कि क्या चल रहा है, कहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास एक फ्री टूल है, बहुत तेजी से, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है? वहां से ये जितनी चीजें हैं ये सारी आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स से मिल जाता है, सही बोले। हाँ, तो आपको सिर्फ एक अच्छा एडवर्टाइजर होना जरूरी नहीं है, एक डेटा विजुअलाइजेशन एनालाइज करने वाला भी होना पड़ेगा। तभी क्योंकि आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में गेस करके मुझे क्या अच्छा लग रहा है
उस पे कभी आप डिसीजन नहीं ले सकते, Yeah. राइट। आपको ई कॉमर्स का मेन फंडा है कि जो भी डिसीजन होगा वो डेटा के बेस पे होगा, Yeah. Yeah. डेटा एनालिसिस के बाद होगा। आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरा यूजर कहाँ से आ रहा है, वो क्या उसका कस्टमर पर्सोना है, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, मेरे को क्या क्या वर्क करना है। तो आप क्या करेंगे, आप गेस पे तो नहीं करेंगे अरे यार मेरा ट्रैफिक इधर से ज्यादा आ रहा है, हो सकता है या इधर से आ रहा है, तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, फिर आप बोलोगे कन्वर्जेंस नहीं आ रहे, कन्वर्जेंस नहीं आ रहे, Yeah. Yeah. राइट। इसके बाद आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के बहुत पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बट ई कॉमर्स के लिए मेनली मैंने क्वांटिटी डेटा एनालिसिस कवर किया। जो ऊपर हम लोगों ने मोस्टली चीजें पे बातें की कि लोग कहाँ से साइट पे एंटर कर रहे हैं, या कौन से फीचर्स से वो, या कौन से प्रोडक्ट से एंगेज हो रहे हैं, चैनल कौन सा है रेफरल उनका, डिवाइस क्या वो यूज कर रहे हैं, उनका डेमोग्राफिक क्या है, एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, Yeah. कन्वर्जन फनल्स में वो है कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको इस डेटा एनालिसिस में करनी पड़ेंगी। इसके बाद से आपको करना क्या है, राइट। जब Yeah. आपको डेटा एनालिसिस करनी है, क्योंकि मेन डेटा ही है, ठीक है। साइट का जो मैंने एक चेकलिस्ट दी थी, कुछ चेकलिस्ट से कुछ चीजें उठा के प्रोडक्ट पेज, चेकआउट पेज कुछ मैं दिखाऊंगा, तो डिफरेंस बहुत समझ में आएगा, Yeah. राइट। अब आते हैं आपको करना है क्या, आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी कैसे। तो Yeah. आपको कुछ नहीं करना है, पहले मैं एक ऊपर वाला टॉपिक कवर कर देता हूँ। शॉपिंग बिहेवियर एनालिसिस आपको करनी है, चेकआउट बिहेवियर एनालिसिस, शॉपिंग बिहेवियर एंड चेकआउट बिहेवियर फनल्स, जो ट्री मैप्स होते हैं, लाइक गूगल एनालिटिक्स में ऑप्शन होते हैं, ठीक है। वहां से यूजर ट्री मैप, वहां से आपको देखना है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा है, कहाँ से ड्रॉप हो रहा है वो, Yeah. प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे टॉप परफॉर्म कर रहा है आपको, राइट। Yeah. वो ठीक है, आप स्टोर से पता कर लेंगे आप निकाल के, ठीक है। बट बहुत सारे केसेस में जो ओनर्स होते हैं ऑनलाइन स्टोर्स के, वो आपको फुल एक्सेस नहीं देते हैं, तो आप वहां से एनालिसिस नहीं कर पाओगे, या आपके पास शायद शॉपिफाई का बेसिक है तो शायद वहां से भी आपको बहुत सारे मतलब एनालिसिस करने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, Yeah. राइट। तो वो सारी चीजें आपको जहां से आप चेक कर सकते हैं, आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, एंड आपका प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस, जैसे आपकी डिफरेंट कैटेगरीज है तो कैटेगरी वाइज भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इंटरनल प्रमोशन कोई रन किया, उससे क्या, कितने लोग आए हैं, क्या उन्होंने एक्शन लिया है, ऑर्डर कूपन, प्रोडक्ट कूपन, एफिलिएट कोड, ये मतलब ये सारी चीजें आप रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। मैं ये एक ओपन करता हूँ, देखते हैं कि आपको क्या करना है। मैं अभी ये स्क्रीन दिख रही है मेरी एनालिटिक्स वाली, अभी लोड नहीं हुआ लग रहा है। एनालिटिक्स वाली नहीं दिख रही है, राइट। हाँ, अभी आप जो लिंक क्लिक किया है ना उसका अभी नहीं लोड हुआ। हाँ, अभी हुआ लोड। ओके, तो अब क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स में जाना है, ठीक है। वहां पे ई कॉमर्स की सेटिंग होती है, ओके। उसको ऑन करना है, राइट। ओके। जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपको ई कॉमर्स का जितना डेटा था, राइट, जो इस वाले डेटा की मैं बात कर रहा था, इस वाले डेटा की बात कर रहा था, ये सारे डेटा आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके। वो एक अलग मोड है जो एक्टिवेट करने से आपको इस टाइप का एनालिसिस हाँ मिल जाएंगे। हाँ। हाँ, ई कॉमर्स के जो जो की मैट्रिक्स के मोस्टली डेटास हैं, या ये रिपोर्ट है ई कॉमर्स की, ये सारी आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, अच्छा। ठीक है। बट इसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज देखते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं। मेरे ख्याल से तरुण होता तो शायद वो बेहतर तरीके से बता पाता, हाँ, नहीं, ठीक है। क्योंकि वो ही इज अ मास्टर इन एनालिटिक्स, तो हाँ।
वो सारे एनालिटिक्स के डेटा के डिसीजन उसी के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, Yeah, yeah, राइट? तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, yeah. राइट? तो वो एनालिसिस आप वहां से चेक कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आते हैं जो अभी हम लोग बेंचमार्क की बात कर रहे थे सर, राइट? कि कन्वर्जन रेट इंडस्ट्री वाइज क्या बेंचमार्क है, राइट? ये अभी जनवरी का 2021 की रिपोर्ट्स है ग्रो कोड की, राइट? Okay. तो इसमें कन्वर्जन रेट अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो 1.7 है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का 3.79, बेबी एंड चाइल्ड्स का 0.99। तो अब ये सारी कैटेगरी का जो भी है अच्छा, इंडस्ट्री वाइज, हाँ इंटरेस्टिंग डाटा है संतोष जी। इसमें क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि ये दे आर टॉकिंग अबाउट conversion rate in the sense, how do they measure it? Like it's like based on the number of people coming and visiting the product page and then converting, or what is that? हाँ, जैसे साइट पे 1000 विजिटर आए अच्छा एंड कन्वर्ट उसमें से 10 हुए तो उसका परसेंटेज निकलता अच्छा, they are not saying like they are not talking on any source of traffic. वो पेड है। हो सकता है नहीं, कि ऑर्गेनिक हो सकता है, वो इट्स ओके। वो उस लेवल पे भी आप, यहाँ पे मैं डीप नहीं जा रहा अभी क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप चाहो तो चेकआउट बोल रहे हैं, एड टू कार्ट का कन्वर्जन रेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सेशंस के निकाल सकते हैं, रिपीट कस्टमर के निकाल सकते हैं, या एक कस्टमर ने 2-3 ऑर्डर्स किए उनका कन्वर्जन रेट निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं, बट यहाँ पे अभी बात हो रही है कि 1000 लोग आपकी साइट पे आए, 10 लोग कन्वर्ट हुए, वो परसेंटेज एक निकाल दे, Yeah, this राइट? Growcode is a company which is providing this kind of data. Yes, brokered Statica, and there are so many companies. Okay. Yeah, Devdutt ji, please hold on. Santosh ji will be giving answers to your questions. Just type in whatever you get in. So it's good that you're having some relevant questions on e-commerce. We'll definitely address that. Yeah. Okay, and उसके बाद करें कन्वर्जन रेट बाय कंट्री। तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट 2.22 का जर्मनी का है, देन Okay. यूनाइटेड स्टेट, देन 1.88 यूनाइटेड किंगडम, 1.8 डेनमार्क, and 1.78 नीदरलैंड, 1.44 ग्रीस, फ्रांस 1.10, इंडिया 1.10 एंड इटली 0.99। अच्छी बात है, हम इटली को पार कर लिया। है ना? तो पॉपुलेशन भी वहां की कम है ना, उसके हिसाब से ठीक है। इंडिया में जो अगर ई कॉमर्स स्टोर की बात करें, हाँ, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर की बात करें तो 80% जो ई कॉमर्स स्टोर शट डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आरटीओ, आरटीओ मतलब? रिटर्न ऑफ जो रिटर्न हो जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, ओके। अगर मैं बात करूं, अगर हम अपैरल इंडस्ट्री की बात करूं तो अपैरल में अराउंड 25 से लेके, अगर प्रीमियम नहीं है तो 25 से लेके 35-40% तक रिटर्न है, तो इट कॉस्ट डबल टू द Yeah, it's very big. लॉजिस्टिक, ठीक है। Yeah, वो too much logistics and money wasted. Money and time is wasted. हाँ, तो वो क्या होता है कि अगर आप यू आर पेइंग 100 रुपीज फॉर द लॉजिस्टिक फॉर द वन प्रोडक्ट, वो गया और फिर रिटर्न भी आया, तो इट विल बी कॉस्ट 200 रुपीज। Can we get back to the last slide once? I just want to have one look. यस, What I see here is like this. This is for any specific country, or it's like total इट्स अ वर्ल्ड वाइड डेटा सर, global. या इट्स So it ग्लोबल looks डेटा। like first is arts and crafts is the highest converting this thing. Then we see health and well-being is Yes. highest converting, and then pet care. Interestingly, pet care is something like 3.28. That is something. पेट केयर ऑडियंसेस, मतलब पेट जो भी पालते हैं लोग, वो लोग काफी मतलब एक मान सकते हैं अपर मिडिल क्लास ही पालते हैं, ठीक है। Definitely, definitely. Yeah. तो वो कन्वर्जन रेट हाई होना ही होना है उसका, होना चाहिए. Spend is their spending capacity is there. And ऑब्वियसली वो लाइक हिज और शी इज लाइक चाइल्ड, जो भी पेट उनका है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से उसकी केयर होती है। मेरे पास भी नीचे बैठा हुआ है वो पैरों में घूम रहे हैं ऐसे ही।
and surprising बात है कि देखिए baby and child में conversion rate is very less. That is something bit surprising. Maybe like people are skeptical about purchasing before they actually means they look or what. Maybe that is one reason. वो चीजें है कि ऑनलाइन परचेजिंग कम होगी, राइट, क्योंकि साइज एंड बहुत उस टाइम पे जब बेबी और चाइल्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो वो चीजों को लेके बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, तो दे डोंट बिलीव एनी अदर साइट्स, ठीक है, अगर रिलायबल साइट्स हैं तो दे कैन परचेज, अदरवाइज सेम है वो कौन सा केमिकल यूज कर रहा है, अगर शैम्पू ले रहे हैं तो वो केमिकल कौन से यूज कर रहे हैं, या नई कंपनी है वो क्या हाइजीन्स रख रही है नहीं रख रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये कन्वर्जन रेट कम हो ऑनलाइन के मामले में। Please move on, Santosh. एंड यहाँ पे इंडिया का 1.10, राइट, एंड अब बात करें रीजन फॉर शॉपिंग कार्ट अबंडमेंट। Oh, it's an interesting slide. Okay, बोलिएगा। ठीक है, मेन होता क्या है कि 70 से 80% के बीच लोग एड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, 100 लोगों ने एड टू कार्ट किया, ठीक है, तो 70% से 80% के बीच, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो वेरी करते हैं, ठीक है, तो मैं एक एवरेज लेके चलते हैं, 70 से 80% के बीच में वो चेक वो एड टू कार्ट करने के बाद आगे मूव नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, राइट, मैंने दोनों चीजें एक में कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। दूसरा रीजन होता है कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं मिलती उनको, राइट, एड टू कार्ट कर दिया, ठीक है, उनको फॉर डिलीवरी का देखा उन्होंने, ठीक है, चेकआउट पेज में पहुंचे, उन्होंने देखा डिलीवरी, मैं तो सोच रहा था कि यार मेरे को 2-3 दिन में मिल जाए, भाई डिलीवरी टाइम तो 10 दिन का दिखा रहा है, राइट, तो वो भी एक रीजन होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर शिपिंग और टैक्स और फी की बात करें तो इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी एक इफेक्ट होता है यूजर को साइट पे लाने का, ठीक है, अगर मेरा my product is 100 rupees, I'm selling on 100 rupees, okay, and but I'm not showing that it's exclusive shipping charges or GST and any other taxes, right, यूजर ने एड में देखा, ओ इट्स 900 रुपीज, साइट पे आ गया, ठीक है, एड टू कार्ट कर लिया, बट उसके आगे उसको दिखा 80 रुपीज शिपिंग टैक्स एंड 18% जीएसटी और अदर टैक्सेस, तो इट कुड बी 200 रुपीज, और एक एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, राइट, तो वो उसको फिर बोलता है अरे नहीं यार छोड़ो नहीं ले रहे, ठीक है, ये हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा आप शिपिंग के चार्जेस लगा देते हो, तो उस टाइम पे वो एग्जिट हो जाता है आपके साइट से, राइट, एंड इसके बाद बात करें तो अब इसमें करना क्या है आपको, ठीक है, जो भी शिपिंग कॉस्ट है वो आपको एक बोलते कैलकुलेशन होती है, ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने से पहले एक कैलकुलेशन, एक क्या बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, जब आप चेकलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पे होगी, आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी रखनी है, आपका शिपिंग चार्ज कितना होगा, रिटर्न रेट कितना है, वो कैसे मैनेज करेंगे, एंड लॉजिस्टिक कैलकुलेशन होती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू प्राइसिंग होती है, रिटर्न कस्टमर्स रेट का कैलकुलेशन होता है, तो वो सारी कैलकुलेशन होती है, उसके बेस पे फिर आपको प्रोडक्ट्स के प्राइस एंड अदर चीजें डिसाइड करते हैं हम, राइट, ये हम लोगों का पार्ट कब होता है, जब एकदम स्क्रैच से चीजें स्टार्ट होती हैं, राइट, तो ये सारी चीजें हम यूजुअली जो भी ओनर्स स्टोर ओनर्स हैं उनको हम लोग बताते हैं, राइट, सर 1 मिनट मेरे को दीजिएगा, कोई दरवाजे पे आया है, तब तक आप डिस्कशन कर सकते हैं। Sure. Yeah, so guys, thank you for holding on. We'll take up the Q&A questions in some time. So yeah, Santosh ji is actually doing this. They are helping a lot of e-commerce businesses,
and they manage an ad spend of 2 crore rupees, Indian rupees per month for various clients. So whatever they are sharing here is something really, really important. Yeah. Yes, Yes. sir, sure. Yeah. And 35% जो अबैंडन कार्ट होते हैं, अब ये कैलकुलेशन ऐसे मत आप जोड़िएगा कि मतलब 61 35 27 इट्स 100 प्लस, तो वो कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है। वो कैलकुलेशन अब जो डेटा में होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। Yeah, actually, we can't sum it up to 100. That's not the way. हाँ, तो सबका एक स्टार्ट है, ठीक है। जो 35% डिडंट वांट टू क्रिएट एन अकाउंट, अगर आपकी साइट पे गेस्ट चेकआउट नहीं है, इफ यू डोंट हैव द गेस्ट चेकआउट ऑन योर वेबसाइट, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी टू 35% पीपल exit from there. Yeah. Right? And checkout process is too long. There are so many fields कि आप उससे पिन कोड्स भी मांग रहे हैं, आप उनसे पिन कोड्स तो जरूरी है, आप उनसे अदर जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है वो डिमांड कर रहे हैं, तो भी बहुत सारे यूजर्स वो साइट आपका एग्जिट कर जाते हैं। ओके ओके। कैलकुलेटर भी कभी-कभी लोग कैलकुलेशन भी चाहते हैं अपफ्रंट, एंड या साइट आपकी कभी-कभी एरर आ जाता है, और कभी-कभी होता है कि 18% जो बात कर रहे हैं, 18% डिडंट ट्रस्ट द ऑनलाइन स्टोर विद देयर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। आपके पास वॉलेट नहीं आपने लगाया हुआ है, आपने सीओडी का ऑप्शन नहीं दिया है, अदर ऑप्शंस उसके पास नहीं, आपने सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया है। तो आई एम आल्सो फीलिंग इनसिक्योरिटी कि जब मैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की डिटेल इंफॉर्मेशन फिल करते हैं किसी नई साइट पे, तो वहां से भी लोग छोड़ देते हैं आपकी साइट। डिलीवरी टाइमलाइन वाज टू मच स्लो, कि आप डिलीवरी टाइम दिखा रहे हो कि अब जैसे अली एक्सप्रेस है, अभी इंडिया में तो ठीक है, अभी आप नॉर्मल वेब पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उनका डिलीवरी टाइम है 60 दिन 70 दिन का इंडिया के लिए। अगर वहां से आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं चाइना से, राइट, तो भी 27 से 28 दिन हैं। अगर आपके वहां के मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स हैं, तो मोस्टली जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, अभी वो क्या प्रीफर करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ, किसी कोई आपका लॉजिस्टिक का यूएस में है, तो वहीं से पिक करा के डिलीवर करा देते हैं, तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा मतलब इंक्रीज कर लेते हैं। तो कभी कभी होता है, अब आते हैं 10% लोग क्यों छोड़ देते हैं, रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है उनको। रिटर्न पॉलिसी बहुत है कि ठीक है आपका प्रोडक्ट, पैसे नहीं वापस होंगे, सिर्फ प्रोडक्ट ही, उसके बदले दूसरी चीज दे दी जाएगी या कुछ और चीजें। तो ऐसे इंफॉर्मेशन, रिटर्न पॉलिसी सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो भी हो जाते हैं। एंड 8% कि भाई हमारी साइट पे लिमिटेड पेमेंट मेथड है, लाइक वो सोच रहे हैं सीओडी करने का, हमने सीओडी का ऑप्शन ही नहीं दिया, चले गए। वो ऑनलाइन सोच रहे हैं या फिर वॉलेट यूज करना चाह रहे हैं, बट आपने वॉलेट का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो भी चले जाते हैं। और 5.5% लोगों का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने की वजह से शॉपिंग कार्ट अबांडमेंट होता है, राइट। हाँ, तो ये सारी चीजें, जैसे अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, आपको कॉस्ट अपनी देख के रखनी है, चेकआउट का प्रोसेस वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, उसके बाद से आपको पेमेंट ऑप्शन सारे रखने हैं, और चेकआउट पेज वन पेज का हम लोग प्रीफर करते हैं। अगर मैं दो चीजें अभी दिखाऊंगा, एक तो प्रोडक्ट पेज, ठीक है, कि प्रोडक्ट पेज एक आइडियल प्रोडक्ट पेज कैसा होना चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उस पे, राइट, वो, एंड चेकआउट प्रोसेस। ठीक है, मैं अभी वो शेयर करता हूँ, मैंने बहुत ही छोटा सा सेशन रखा था ये। it was small, but actually it's something you cover very important stuff. Yeah, just wait. So someone is asking about can they get a slides? What do you think, Santosh ji? एकदम. Okay. Obviously, we'll get the slide. PPT also. There are many pointers which are really valuable.
So we'll share it, boss. I think Das ji was asking that question. Yeah. अब मैं थोड़ा सा और कुछ चीजें कवर कर लेते हैं। Sure, Like, sure. अभी आते हैं प्रोडक्ट पेज का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Okay. लोग इस चीज पे बात नहीं करते कभी, राइट, कि प्रोडक्ट पेज ये सॉप्टिमाइज का है, उसके सीईओ ने बनाया हुआ है ये, राइट। तो मोस्टली इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए, ठीक है, चाहे वो क्रॉस सेल हो, अपसेल हो, सोशल प्रूफ हो, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हो, अर्जेंसी क्रिएशन हो, या फिर पेमेंट की इंफॉर्मेशन हो, ये सारी चीजें इस पेज में मिल जाएंगी। Okay. राइट। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सोशल प्रूफ दिया है, दे पुट द सोशल प्रूफ हियर, और यहाँ पे दे आर आल्सो मेंशनिंग 6700 स्प्लिट टेस्ट रिजल्ट्स के बाद, ये जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, वो बहुत सारे 6700 A/B टेस्टिंग करी गई है, राइट। मतलब आपको लगा कि वो पोजीशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां पे रिव्यू या सोशल प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, एंड उसके बाद कॉल आउट में हम मेन फीचर्स इंक्लूड करते हैं। जैसे हम गूगल एड्स में कॉल आउट का ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां पे अपने फीचर्स आप दिखाते हैं सर्च एड में, तो यहाँ पे भी आपको दिखाना है, राइट, की बेनिफिट्स, जो भी की बेनिफिट्स हैं आपके। ये बेसिकली टी शर्ट्स का शायद इन्होंने बनाया हुआ है, बट ये आइडियल हो सकता है सारी इंडस्ट्री के लिए जो भी ई कॉमर्स में है, प्रोडक्ट सेल कर रही, राइट। एंड यहाँ पे क्या इन्होंने लिवरेज दिया है, यहाँ पे 29.99 जो स्ट्राइक थ्रू प्राइस, मेन प्राइस जो दिया है वो बड़ा दिया है कि आपका पहले जाएगा 29.99 पे, और इट्स $30 प्राइस, बट सेम उसके बगल में आप देखेंगे, ओ इट्स $24 प्राइस। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाते हैं, राइट, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाता है कि हाँ, अरे ये $30 का था, बट आई एम गेटिंग नाउ ओनली $24। तो वो चीज होती है। इसके बाद से अगर आप अपैरल में हैं, चाहे आप टी शर्ट, ड्रेसेस, कुछ ऐसी चीजें बेच रहे हैं, तो आप साइज वाला ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं। होता ही है बहुत सारी साइट्स में, अभी कुछ साइट्स में हम लोग चेक करेंगे, राइट। कलर, अगर आप पीओडी में हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग और पीओडी की, तो अगर आप पीओडी में हैं और कस्टमाइज प्रिंटिंग करते हैं नेम की टी शर्ट या अपने कंपनी का, तो यहाँ पे वो नेम दे सकते हैं, राइट। आप अगर कस्टमाइज मर्चेंडाइज आप सेल कर रहे हैं, उसके बाद से आपका सीटीए हो गया, एड टू कार्ट, एंड उसके नीचे ठीक आपको क्या करना है, जो आपके पेमेंट मेथड है उसको यही पता चल रहा है कि मेरे पास ये मोड है पे करने का, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप पे अभी वो गया भी नहीं है, अभी एड टू कार्ट करके वो चेकआउट पेज पे गया भी नहीं है, बट उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा मिलेगा उनको पेमेंट ऑप्शंस, या। एंड इसके बाद अगर आप क्वालिटी क्वांटिटी दिखा रहे हैं आप, ठीक है, स्कैर्सिटी जो बोलते हैं ना कि आप हाँ, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो आप दिखा रहे हैं, अरे सिर्फ 2 बची हैं या 3 बची हैं, 2 लोग देख रहे हैं, तो वो एक क्रिएट करता है, बस क्रिएट करता है बाय करने का, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाता है यूजर के माइंड में कि हाँ, अरे 2 बचा है, और ये ऑफर, यहाँ पे ऑफर भी दिया गया है। अर्जेंसी में ये urgency is the third most influencer factor in e-commerce conversion based on analysis 6700 split test result। ठीक है, Amazon में बहुत यूज करता ना, ये बोलता है कि सेम वर्डिंग Amazon में देखा हूँ बहुत बार मैं, नेक्स्ट दिस मच एंड यू गेट इट बाय ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, ऐसा बोल के। Amazon आप देखो ना, Amazon ये कर रहा है, Amazon का भी हम लोग पेज चेक करेंगे, उनका चेकआउट पेज देखिए, और कुछ कंपनी का चेक करेंगे, आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। या Amazon तो बहुत खिलाड़ी है सब मामला में। उसके बाद से यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि जो हम $24 का पेज दे रहे हैं आपको, ये ऑफर सिर्फ 3 आवर्स के लिए है।
होता तो सब कुछ हमारे हाथ में ही है, ठीक Yeah, है, but it's like creating an urgency. ठीक है, बट यूजर को दिखाना होता है कि वो कि सिर्फ यू हैव ओनली लेफ्ट 2 to 3 hours, अदरवाइज यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। Yeah, yeah. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है योर वैल्यू प्रोपोजिशन is one of the most important factor in conversion. Why should someone buy from you rather than someone else? भाई क्यों बाय करे आपको? तो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं 100% सिक्योर, फ्री Shipping. डिलीवरी, ठीक है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। आप प्रोडक्ट में की भी बात कर ले भी सेटिस्फाइड रहेंगे। उसके बाद से इजी रिटर्न्स, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सारी चीजें होंगे। अब आएंगे हम लोग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे, राइट। आपको डिस्क्रिप्शंस क्या क्या देने हैं, उसके बाद से ये सारे क्लिकेबल फीचर होंगे। एक क्लिक होगा तो दूसरा क्लोज हो जाए, Yeah, राइट। tab जैसा. हाँ, टैब। तो अब होगा क्या कि आपको आपका जो लैंडिंग पेज है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, राइट, क्योंकि जितना ज्यादा स्क्रॉलिंग होता है थोड़ा सा कन्वर्जन का इशू होने लगता है। Call to action लोगों को नजर से हट जाता है अगर मेन यस, बात वही कि या वो बटन निकल जाता है वहां से एंड यू हैव टू अगेन रिवेट हो जाते हैं लोग. यस, एंड यहीं पे उनको एक्सचेंज रिटर्न रेफर रिटर्न का भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। वो चाहे तो यहीं पे रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। हाँ तो हाँ. ये सारी चीजें इनको यहाँ पे मिल जाती हैं, राइट। इसके Yeah, बाद आते हैं कि आपको सिंगल प्रोडक्ट इमेज यूज करनी है या मल्टीपल प्रोडक्ट इमेज यूज करनी है एंड वीडियो यूज करना है। तो 64 to 85% पीपल लाइकली टू बाय जो वो वीडियो देखते हैं, राइट। yeah. एंड बाकी लोग, अगर मैं भी शॉपिंग करता हूँ तो मेरे को अगर टी शर्ट में बाय कर रहा हूँ तो आई वांट कि 3 से 4 एंगल पे सेव इमेज हो उसकी। अदरवाइज मेरे को पता ही नहीं चलेगा यार पीछे क्या छपा है या किधर क्या लगा है। तो मैं तो वैसे ही नहीं परचेज करूंगा। Definitely. तो video will definitely make a lot of sense. हाँ, वीडियो वीडियो भी वो जरूरी है, क्योंकि वीडियो से क्या होता है एक्चुअल लुक्स और साइज वाइज का वो पता चलता है, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट। हाँ. ठीक है, कि अगर मैंने टी मोबाइल शर्ट चार्जर. खरीदी है, ठीक है, तो मैं हो सकता है आई एम लाइकली टू बाय जीन्स, हो सकता है मैं कैप बाय कर लूं या कुछ और रिलेटेड उससे आइटम बाय कर लूं, या ठीक है। स्पोर्ट्स टाइप का टी शर्ट खरीदा. हाँ, जैसे मैंने एक रैकेट खरीदा, ठीक है, रैकेट के साथ कॉक भी देंगे, उसके अलावा उसका नेट भी, और भी बहुत सारी चीजें वो ऑप्शंस में दिखाते हैं, दिखा सकते हैं. या राइट। तो ये यहाँ पे एंड रिसेंटली व्यू, तो अब यहाँ आप अपसेल क्रॉस सेल दोनों चीजें कर रहे हो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है. ठीक है। हाँ, वो एओवी जो अभी बात कर रहे थे पीछे, तो वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद रिसेंटली जो भी आइटम उन्होंने देखा हुआ है, राइट, वो या आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो एक उससे क्या होता है वो कंपैरिजन भी तुरंत के तुरंत हो जाता है। अच्छा ये है नीचे, अच्छा ये देखा था, दूसरे टैब में खोल के फिर से चेक करते हैं, अच्छा ये मैं खुद ही करता हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये एक परफेक्ट लैंडिंग पेज हो सकता है प्रोडक्ट का, डेफिनेटली. राइट। बहुत सारी चीज कवर किया हुआ है इसमें. तो हाँ, तो इसमें ऑलमोस्ट मोस्टली चीजें, और मोस्टली आप अमेजोन का देखेंगे ना, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है. वो मोस्टली उसमें उनका पेज आप देख लो ना, अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, उनका आप चेक कर सकते हैं। या यू विल गेट सो मेनी आइडिया। वो रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, दे आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज ऑन यूआई में, यूएक्स में। तो वो चीज होती है। अब आप डेफिनेटली. पैसा आप सीखेंगे नहीं, दूसरी जगह से नॉलेज नहीं लेंगे, दूसरों को देख के चीजें नहीं करेंगे, तो वो होता है कि अगर आप रेंडमली कुछ भी करते हैं तो आप फेल होंगे बहुत सारी जगह पे। आपको कुछ भी करने से पहले आपको रिसर्च करनी करनी है। डेफिनेटली. डेफिनेटली. एड फेसबुक एड चलाना, इट्स लाइक
कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल आदमी भी चला लेगा, फेसबुक सब कुछ बताते हैं उनको। या तो इसके अलावा एक और मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग आते हैं कुछ चेकआउट पेजेस पे आते हैं, कुछ मैं दिखाता हूँ। चेकआउट प्रोसेस, मैं मामा अर्थ का दिखाता हूँ, ठीक है। ओके ओके अब ये सारे फीचर आप देख रहे हैं, ठीक है, इनसे भी कन्वर्जन रेट बढ़ता है। अभी मैं ऐड पे नहीं आ रहा हूँ, ऐड गूगल ऐड या फेसबुक ऐड, क्योंकि गूगल अभी गूगल ये खुला है, तो गूगल की बात करें तो मर्चेंट सेंटर से आप प्रमोशन क्रिएट करेंगे, ऑफर्स और कोड्स लगाएंगे, वो आपको दिखेगा। वहां पे आप डिलीवरी सेट करेंगे, आपको यहाँ पे फ्री डिलीवरी दिखाएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी कोई आएगा, कुछ और मैं पर्टिकुलर वर्ड सर्च करता, हेयर ऑयल या फिर शैम्पू या कुछ और, तो यहाँ पे इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है तो मेरे को लग रहा है ना कि हाँ ऑफर चल रहा है, आई कैन गो फॉर दिस। मैं इसके लिए नहीं जाऊंगा अभी। हाँ, उधर भी है ऑप्टिमाइजेशन है हाँ, स्पेशल ऑफर नाम से। हर हर जगह में आप ऐड का ऑप्टिमाइजेशन, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट, वो लोग कवर करते हैं। या मतलब वही से यू कैन, इतने में से कुछ कुछ ऑफर में चल रहा है बोल के यू मेक देम क्लिक, वहां तो जाने हाँ, इसके बाद से हम लोग इनका 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 मेरे को चेकआउट प्रोसेस बहुत स्मूथ लगता है। वन पेज चेकआउट है, अच्छा एंड मैं इनको ऐड टू कार्ट करता हूँ। ओके अब यहाँ पे सर जो हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रोडक्ट पेज मैंने दिखाया था, या राइट, मोस्टली चीजें यहाँ पे हैं। 100% सेम नहीं है, बट मोस्टली चीजें यहाँ पे हैं। रिव्यूज तो दिया हुआ सोशल प्रूफ रिव्यू दे दिया उन्होंने यहाँ पे, वो 17 अपना यूनिट्स बोला, हर ओनली 17 यूनिट्स लेफ्ट इन स्टॉक। ये भी दिखा दिया, हाँ प्रूफ भी दिखा दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस भी दिखा दी, यहाँ शेयरेबल भी चीजें दिखा दी कि आप शेयर भी कर सकते हो, या या राइट। मोस्टली गर्ल्स के जब वो वो होती हैं, कस्टमर होती हैं, तो वो फर्स्ट टाइम में बाय नहीं करती, वो व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को या किसी को शेयर करती हैं, आई एम गोइंग टू बाय दिस, देखो कैसा लग रहा है या क्या है। तो ये सारी चीजें ना बहुत काम की होती हैं। कभी उनको हस्बैंड को दिखाने के लिए भी रहेगा शायद, हाँ decision making हाँ के लिए। हाँ, ये चीज है। एक मिनट। बिकॉज कई बार जनरली इस टाइप के प्रोडक्ट्स क्या वुमन बाय करते हैं, सो उसमें से कुछ लोग होते हैं कि डिसीजन मेकिंग के दे डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली मेंबर्स। तो अब देखिए सर, अब इसमें एक चीज और नहीं मिली आपको। जैसे मैंने ये ऐड किया, ये वाला फोल्ड, ठीक है, जो फर्स्ट विजुअल बहुत फोल्ड है, डिफरेंट, हाँ राइट। जब मैं फर्स्ट विजुअल फोल्ड से जैसे ही नीचे आता हूँ, मेरे को यहाँ पे स्टिकी ऑप्शन मिल जाता है ऐड टू कार्ट करने का, हाँ, ये नहीं भूलेंगे आप ठीक है। तो ये छोटा छोटा ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत काम का होता है। या बिकॉज पीपल नॉट फॉरगेट, उनको हाँ, नजर में है, इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ देयर व्यू, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। या एंड इसके बाद से जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थी, वो उसके बाद उन्होंने कैसे यूज करना है और दूसरे से क्यों बेटर है, ओके, कंपैरिजन भी दे दिया। कंपैरिजन भी दे दिया, एफएक्यू दे दिया, कुछ डाउट्स है तो आप एफएक्यू से क्लियर कर लीजिए, डिस्क्लेमर भी दे दिया, यहाँ पे फिर रिव्यूज, सोशल प्रूफ दे दिया, ओके, राइट। उसके बाद से यहाँ पे उसने मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस दे दिए, बेस्ट सेलर उन्होंने दिखा दिया, उनको पता है कि हाँ ये टॉप सेलिंग है तो ये जा सकते हैं, राइट। प्लस इन्होंने ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दिए यहाँ पे कॉम्बो दिखा के, राइट। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 599 499, बट कॉम्बो में 3% ऑफ 5% ऑफ दिखा दिया है, या राइट। या ये हो गया। उसके बाद फ्रिक्वेंटली ब्रॉट टुगेदर, अगर मैंने यहाँ पे ये क्या सेलेक्ट किया था, सॉरी, विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, मैंने फेस वॉश सेलेक्ट किया था, ठीक है।
अब वो दिखा रहा है कि फेस वॉश सेलेक्ट किया है तो आप हेयर ऑयल भी खरीद सकते हैं उसके Yeah, साथ, yeah. ठीक है, शैम्पू भी खरीद सकते हैं, फेस सीरम भी खरीद सकते हैं। Okay, okay. तो यहाँ से ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, Hmm. ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा दिया कि और भी चीजें देख सकते हैं फेस से रिलेटेड। यहाँ पे रिसेंटली व्यू भी दिखा दिया, राइट। यहाँ पे फिर उन्होंने फ्री शिपिंग, सीओडी, Hmm. कुछ क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। Yeah, everything is covered actually. कवर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एड टू कार्ट पे। Okay. जैसे ही एड टू कार्ट पे आए तो वो पहले दे रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग, और Okay. उसके बाद उन्होंने कूपन की बात की, जो हम लोग बात कर रहे थे कूपन की। Hmm. चेकआउट पेज से अबंडेंट जो बात हो रही थी कि अबंडेंट कार्ट क्यों होते हैं, लोग क्या क्या रीजंस होते हैं। कभी कभी होता है चेकआउट का कूपन्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, राइट। Hmm. No, बहुत लोग नहीं करते एक्चुअली। हाँ, तो अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि भाई ये कूपन यूज करो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा, हाँ, तो राइट। उनको एक सरप्राइज मिल रहा है कि एक हाँ, इंसेंटिव मिल रहा है कि बॉस अभी खरीदने के लिए। यस। और उसके अलावा वो लोग आरटीओ अवॉइड करने के लिए, मतलब रिटर्न अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट पे 5% एक्स्ट्रा ऑफ दे रहे हैं, राइट। ओके देखिए यहाँ पे ओके। कि भाई इतने का लेंगे, अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 15% ऑफ और ऑफ मिल जाएगा। ओके। भाई 15% ऑफ क्यों दे रहे हैं? अगर इनका मान लीजिए 30% रिटर्न रेट है, अगर ये ऑनलाइन पेमेंट की वजह से अगर वो 10% हो जाता है हाँ हाँ, तभी ये प्रॉफिटेबल है कैलकुलेशन में। डेफिनेटली। या या तो ई कॉमर्स में ना, ई कॉमर्स सक्सेसफुल रन करना है तो बहुत सारी चीजों, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम चेकआउट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेकआउट पेज पे आपका ये प्रोडक्ट का थंबनेल्स होना जरूरी है 100%, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा मैं क्या खरीद रहा हूँ, या या। राइट। इसके अलावा ये वन पेज चेकआउट है। हम्म। आप देखो ना, होता क्या, चेकआउट पे आप नॉर्मल शॉपिफाई साइट पे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है, 3 4 से 5 प्रोसेस होते हैं, ऊपर प्रोसेस बार भी बनी होती है, राइट। यहाँ पे प्रोसेस बार नहीं है, यहाँ पे वन पेज चेकआउट है। यूजर को सिंपल सा पता है मेरे को नाम नंबर ये भरना है, यहाँ पे मेरे को पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, कुछ भी मैं सेलेक्ट करूंगा और सीधा क्लिक करूंगा, बाय हो जाएगा। ओके ओके। अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी स्क्रीन में ये वाली शेयर हो रही है, दूसरी जो मैंने ओपन करी है, हाँ हाँ, हो रहा है। हो रहा है। गूगल पे चलते हैं, कुछ भी नाम बताइए, कुछ भी, कुछ सर्च करते हैं प्रोडक्ट। मेंस शेविंग क्रीम या कुछ मेंस वैक्स या जो भी है। ठीक है, मैं एक कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को छोड़ के। नायका। नायका का मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, मैं फिर भी ओपन कर ले रहा हूँ, देख लेते हैं। अच्छा, यू वांट टू पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं आप देख रहे हो, थोड़ा इतनी कंफ्यूज। इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। मैं लाइक खरीदने से ज्यादा आदमी को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं अगर शॉप ऑनलाइन करता हूँ तो वो यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या रहे हैं, ये ट्रैफिक मतलब डाइवर्ट कर रहा है मार्केट प्लेस पे, क्या जिस जहाँ जहाँ पे इनका मतलब इन्होंने रखा हुआ है आइटम ऑनलाइन, वहां के लिए, ठीक है। सही है सही है। इस पे अभी बात नहीं करते हैं, आ जाते हैं नायका पे, ठीक है। नायका का दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। ये वाला पेज दिख रहा है, प्रोडक्ट पेज, या यस। ओके। ये लोग, ठीक है, उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितने आपको मामा अर्थ पे मिली। डेफिनेटली उतना नहीं है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो बहुत मतलब यहाँ पे दिया है, अब रीड मोर का ऑप्शन दिया है,
हाँ, ठीक बहुत है। अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब रीडेबल नहीं है हाँ, बहुत। अब मैं एड टू बैग करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और है, एड टू कार्ट और एड टू बैग। ओके। ठीक है, अब आपको ए बी टेस्टिंग करनी है। हम्म। या तो आप इंडस्ट्री में देख लीजिए कौन सा बेटर काम करता है। हम्म। ठीक है, एड टू बैग और एड टू कार्ट, दो मतलब ये दो एक ही चीज है, बट वो थोड़ा डिफरेंट नाम से है, तो वो देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए यहाँ पे इनके चेकआउट पेज पे, राइट। या। एंड यहाँ पे अब देखिए, शिपिंग चार्ज 70 रुपीज। एक सरप्राइज मिल गया उसको। सरप्राइज मिला ना या, डिस्काउंट भाई। दिया लेकिन शिपिंग चार्ज के साथ उसको बराबर कर दिया उसको। वो बोला बैग डिस्काउंट हमने आपको 80 रुपीज दी। ठीक है, जो 27% का डिस्काउंट था वो 80 रुपीज है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, बट आपको 70 रुपीज आपको पे करने हैं शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज पे करने में आदमी को थोड़ा दुखता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो यहीं से भाग जाएगा यूजर। या, इसके बाद हम लोग आते हैं चेकआउट पेज पे। अब देखिए इनका चेकआउट प्रोसेस। हाँ, फिर लॉग इन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला कि आप फेसबुक सोशल दोनों जगह से लॉगिन हो सकते हैं। सबसे पहले ईमेल आईडी फोन नंबर डालिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करिए। एक चीज अच्छी करिए, गेस्ट चेकआउट दिया हुआ है, राइट। मैं इसे गेस्ट चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, लॉगिन, एड्रेस, पेमेंट, राइट। 3 स्टेप दिखा दिए इन्होंने। और 3 स्टेप में लोग कहीं ना कहीं खो जाने का मौका है, मतलब। ठीक है, अब मैं एज ए गेस्ट चेकआउट करता हूँ। एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि पेमेंट पे मेरे को कौन कौन सा ऑप्शन मिलेगा। हाँ, ये सब सरप्राइजेस जैसा है, मतलब बाद में जाके क्या देखने मिलेगा पता नहीं बंदे को। तो ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करके अब हमने यहाँ देखा। ठीक है, यहाँ देखा, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक ही जगह मिल रहा था। एक ही जगह मिल रही है। बट हाँ, ये बेसिक शॉपिफाई में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। ओके। ये मैं पहले क्लियर कर दूं। या मामा तो आप ऐप, लोग, ये मामा ऐप बट शॉपिफाई वाला में नहीं है, मतलब। बट आपके पास प्लगइन है। शॉपिफाई का प्लगइन से होता है। शॉपिफाई में प्लगइन्स आते हैं वन पेज चेकआउट्स के, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो कॉमर्स के वन पेज के आते हैं, बिग कॉमर्स के आते हैं, मैजेंटो के आते हैं, वन पेज चेकआउट के प्लगइन्स आते हैं हर सब में। अच्छा। तो आप वो चीज कर सकते हैं, ओके। राइट। तो ये प्रोसेस करके हम लोग ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा। राइट सर। संतोष जी, विल टेक सम क्वेश्चंस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे, देवदत्त दास जी ने पूछा एंड आदित्य अग्रवाल, इन्होंने इंटरेस्टिंगली सेशंस को फॉलो कर रहा था। सो विल टेक फेसबुक पे भी कुछ क्वेश्चंस है, विल टेक अप वन बाय वन। ठीक है सर। ओके। आई थिंक देवदत्त दास जी बोल रहा था, गोवर्धन यू ऑलवेज मैनेज टू गेट जेम्स टू स्पीक, थैंक यू। नो दास जी, इट्स a pleasure having people like Santosh ji coming and sharing their valuable information. Out of their busy schedule, they are busy with every clients and all, but still he managed to come here. So the question is from Arun Shankar is, how to choose the right e-commerce services? What are the factors to be considered? For example, Shopify versus WooCommerce versus others. Um, एक मतलब, प्लीज प्लीज सर एक बार रिपीट करिएगा। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि तीन प्लेटफॉर्म को कंपैरिजन कर रहा है, शॉपिफाई, वूकॉमर्स एंड अदर्स। हम्म, मतलब ये तीनों के बीच में कैसा, मतलब चूज करे प्लेटफॉर्म, व्हाट इज दैट डिसाइडिंग फैक्टर, क्या है मतलब। देखिए शॉपिफाई अगर चूज करते हैं आप, तो आपका क्या क्या वर्कलोड हट जाएगा। एक तो होस्टिंग, मतलब साइट के स्पीड, राइट। दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर, कि आपके स्पीड का लोडिंग इशू क्या अगर है। ज्यादा है तो यूजर वहीं से एग्जिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो कॉमर्स आप यूज कर रहे हैं बट आपने होस्टिंग अच्छी ली है, तो आप वो कॉमर्स के लिए जा सकते हैं। बट देर आर, शॉपिफाई ने क्या किया है, शॉपिफाई ने बहुत सारे
इजी टू यूज प्लगइन्स कर रखे हैं, ठीक है। शॉपिफाई का फेसबुक चैनल प्लगइन सारा वन क्लिक सब कुछ सेटअप है, ठीक है। इवेंट शॉपिफाई के प्लगइन्स हैं जो फेसबुक के, उसमें आप कन्वर्जन, फेसबुक कन्वर्जन एपीआई भी एक्टिव कर सकते हैं, बट वो सेटअप आपको करना होगा। अब एपीआई सेटअप करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, जब आप एपीआई सेटअप करते हैं तो जो यूजर का डेटा होता है वो सीधा सर्वर से शॉपिफाई को मिलता है या वो फेसबुक पिक्सल को मिलता है, ठीक है। तो वो और भी एक्यूरेट होता है, अच्छा, ओके, राइट। तो वो आपका जो ऑडियंस बनता है ना, तो वो काफी अच्छा बनता है, वो बेस्ट ऑडियंस बनती है, अच्छा, राइट। वो चीज होती है। और शॉपिफाई में गूगल चैनल है, गूगल चैनल आप यूज करेंगे तो आपको मर्चेंट सेंटर में फीड क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, अच्छा, राइट। वो मर्चेंट फीड बाकी सारा सेटअप यहीं पे इजिली हो जाता है। जबकि ये वाला फैसिलिटीज की बात करें तो वो कॉमर्स में नहीं है उतना इजी, आपको अलग अलग प्लगइन्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो इशू है। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप पैसे हैं, क्योंकि आपको शॉपिफाई को मंथली पे भी करने हैं $29, तो अगर है, ठीक है, आप चाहते हैं कि स्टेबलिश हैं, आप शॉपिफाई के साथ जा सकते हैं, तो आप शॉपिफाई के साथ जाइए। अभी के टाइम पे 70% स्टोर शॉपिफाई के पास से एक्वायर किया हुआ है, अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, तो वो चीज कर सकते हैं। तो आप शॉपिफाई के और अदर्स की बात करें तो अगर आप बहुत ही इंटरप्राइज लेवल के हैं तो आप मैजेंटो पे जा सकते हैं, ओके, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप जा सकते हैं। ओके। माने मैजेंटो मतलब यू नीड लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस एंड जो भी आपको हाँ एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा। हाँ हाँ। सो मैजेंटो इज बेटर देन वूकॉमर्स इज व्हाट यू सजेस्ट? और मैजेंटो का कोई भी, सबसे पहली बात, मैजेंटो इज वेरी कॉस्टली, ओके, ठीक है। उनके प्लगइन्स बहुत ही महंगे आते हैं, तो फ्री का वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, ओके। हाँ, सो शॉपिफाई इज इजी टू और सेट अप। उनके डेवलपर्स भी इजीली नहीं मिलता मिलते नहीं हैं। है। हाँ So Shopify is easy to set up and start fast and all. The WooCommerce का थोड़ा अलग है, customization से, but again that is different kind of thing. So yeah, Shopify is something means which is more acceptable now, and I'm seeing बहुत सारा बड़े बड़े stores भी Shopify में है बोल के मैं सुना था actually. हाँ, Like बहुत सारे हैं सर, अब मैं क्या बताऊं, बहुत सारे स्टोर्स हैं। yeah. Then one more question is like Devdutt Das का जो question है, I get 100 plus visitors to my apparel store on Shopify. सेल्स आर एक्सट्रीमली बैड। दास जी, आपको 100+ विजिटर्स आ रहे हैं आपके अपैरल स्टोर में बट सेल्स अच्छा नहीं है, तो मे बी दैट इज लीडिंग टू द कन्वर्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो हाँ, क्या बोलेंगे उसके इस लिए पर? आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहले तो एक बार चेक करिए कि जो की मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, कि अगर 100 यूजर्स आपकी साइट पे आए हैं तो कितने लोगों ने कंटेंट व्यू किया है, फिर कितने लोगों ने एड टू कार्ट किया है, कितने लोगों ने एड टू पेमेंट इन्फो किया है, राइट। अगर कुछ लोगों ने एड टू कार्ट किया है, परचेज नहीं किया है, तो शॉपिफाई में आपके पास अबैंडन कार्ट रिकवरी के प्लगइन्स आते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने ईमेल आईडी चेकआउट के आते हैं, जैसे किसी ने ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल के चेकआउट पे गया, ठीक है, वहां से वो लेफ्ट कर दिया, तो आप उनको एट द सेम टाइम एसएमएस भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। आप 2 to 3 एसएमएस और ईमेल सेटअप कर दीजिए 24 आवर्स का, उससे 6-7% रिकवरी हो जाते हैं मंथली। तो दास जी, आप जैसा मतलब संतोष जी का कहना है कि ब्रेक डाउन द जर्नी इनटू 3-4 स्टेप्स, कि डायरेक्टली मत बोलिए कि 100 लोग आ रहे कोई नहीं खरीद रहे, सो इन बिटवीन जो कितना अभी लोग व्यू किया। ये हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो और मैक्रो कन्वर्जन की, तो हम्म, अभी देखिए दोनों में दोनों कन्वर्जन जरूरी है। अभी आपको ज्यादा कन्वर्जन क्या आ रहा है, माइक्रो आ रहा है, मैक्रो आ रहा है, उसके बेस पे फिर डेटा एनालिसिस करिए, फिर डिसीजन लीजिए। एंड 100 विजिटर इज वेरी लेस, तो आप कोई, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो डेटा भी
एनालिटिक्स ठीक से एक्यूरेट मिलेगा। करेगा, और आप 100 यूजर्स के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। या बहुत मुश्किल जाएगा, सही बोले। या सो 100 पर डे बोल रहे हैं दास जी। 100 पर डे, ओके 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 ओके। 100 पर फिर डे फिर इज गुड फिर आप एक बार डेटा एनालाइज करिए। डेटा एनालाइज करने के बाद एक शीट बनाइए कि कितने लोग कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से, तो आप रिपोर्ट निकालिए। उसके बाद आप देखिए कि किस किस प्रोडक्ट पे किस किस प्रोडक्ट का चेकआउट हुआ है या एड टू कार्ट हुआ है। आप फिर उसके बाद एक बार चेक करिए यूजर कहाँ कहाँ से आए, जो ये यूजर आए हैं वो किस प्लेस से आए हैं, राइट। आपको बेटर पता होगा कि आपके टॉप मूविंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कैटेगरी वाइज टॉप मूविंग कौन से हैं, और आपका एंड यूजर, क्योंकि आप जब एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं तो आप एक कस्टमर पर्सोना बनाते हैं, लाइक वो रिटर्न में बनता है, ठीक है। तो आपको बेटर पता होगा कि अगर ये यूजर आ रहे हैं कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो मेरा डेमोग्राफिक क्या होना चाहिए, एज वाइज, या फिर वो कहाँ पे वो रहते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। या दिस डेफिनेटली। कैन बी द ट्रस्ट फैक्टर टू। तो यस। आप कुछ सोशल प्रूफ के प्लगइन मिलते हैं शॉपिफाई पे, अच्छा, ओके। ठीक है, तो आप यूज करिए उसको, फर्जी जो भी बोल रहे हो आप। प्लगइन का नाम कुछ पता है क्या, कुछ याद है क्या? सर अभी मैं किसी का नहीं बोल सकता, ठीक है। वो ठीक है, बहुत नहीं आप स्पेसिफिक हो जाएगा, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे प्लगइन्स हैं। सोशल प्रूफ plugins बोल रहे हैं, so there दास जी, you can search, we I'll also try to search for those and try to give you that information. uh, yeah, like he's mentioning that if you know the top moving products, promoting them more will be helpful and all, that is मेरे one ख्याल thing. से एक बार उनसे पूछिए कि वो डायरेक्टली क्या कन्वर्जन ऐड चला रहे हैं क्या। Das ji, are you running conversion ads? Or like how is that you're getting these people, 100 people per day to your shop? हाँ, कन्वर्जन ऐड चलाते हैं। Okay, okay. सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार आप लैंडिंग आप पेज, बात कर सकते हैं दास जी डायरेक्टली, conversation will be good instead of chat. Yeah. आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं नहीं नहीं, अभी बात कर सकता है, अभी अभी हाँ, तो onboarding का आप शेयर। दास जी, आपको क्या करना है कि अगर आप how much money you are spending daily for getting the 100 visitors per day? हेलो, हाँ दास जी बोलिएगा। या he spent about 25,000 a month. 25,000 means 1,000 rupees per day एवरेज एक मान के चले तो, राइट। हाँ जी, हाँ जी। और 1,000 खर्च कर रहा है तो वी आर गेटिंग 100 विजिटर्स। नहीं, 100 एक्चुअली हम लोग के 2-3 वीडियो में ही आना शुरू हो गए, तब से 6 महीने से आ रहे हैं डेली, और थोड़ा एसईओ का भी कुछ सर्विस लिया था, शायद उससे बढ़ गया होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बेस्ड स्टोर है या कुछ और है सर? सर कैन यू रिपीट दैट प्लीज? It's a product based store or something else related? प्रोडक्ट बेस, वी सेल हैंडलूम साड़ीज एंड दुपट्टास। ओके सर, मैं सजेस्ट करूंगा यू कैन गो फॉर द फर्स्ट लैंडिंग पेज के लिए, ट्रैफिक ऐड के लिए जाइए। ट्रैफिक ऐड हार्डली आपको बिलो 1 रुपीज मिल जाएगा, और मैक्सिमम 2 to 3 रुपीज। ओके, तो अगर 1,000 रुपीज भी आप स्पेंड कर रहे हैं तो यू विल गेट 1,000 यूजर और 1,500 यूजर ऑन अ वेबसाइट। ओके, एंड एक बार उनका इंटरेस्ट और जो भी एक्शन वो कर रहे हैं, आपको डेटा, सबसे पहले आपको करना क्या है सर, जो ई कॉमर्स का प्रोसेस होता है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ई कॉमर्स में मैं बात करूं अपनी, तो हम क्लाइंट को कभी सीधा प्रॉमिस नहीं करते सेल्स के लिए, ठीक है। हम उनको बोलते हैं कि एक एक्स अमाउंट आपका, अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक डेटा के लिए हमें चाहिए, फाइंडिंग्स के लिए हमें एक्स अमाउंट चाहिए, जो हम कहीं भी जहां पे टेस्टिंग लगेगी वहां पे हम स्पेंड करेंगे। तो आप 3,000 to 5,000 रुपीज निकाल लीजिए एक साइड, एंड उससे सिर्फ ट्रैफिक एड्स चलाइए, जो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन रखिएगा वो लैंडिंग पेज रखिएगा,
राइट। तो हाँ जी। 5000 में आपको मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास मिल जाने चाहिए विजिटर्स। अगर 10,000 विजिटर्स आते हैं, एक बार डेटा एनालाइज करिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या मेरे को करना है। और उन 10 जो लैंडिंग पेज का आप ऐड चलाएंगे उससे भी कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट हो जाएगी। अब डायरेक्टली चला रहे हैं तो डायरेक्टली बहुत ही मुश्किल होता है सर, कि सीधा होता क्या है कि फेसबुक या गूगल क्या करते हैं, उनके पास आपका सारा इंफॉर्मेशन है, हाँ जी। सब कुछ है। प्राइवेसी तो मतलब कुछ है ही नहीं, वो प्राइवेसी नाम ही भूल जाओ आप। वैसे सर इंडिया में प्राइवेसी कुछ है क्या? वो तो खाली आजकल नया फैशन हो गया प्राइवेसी। नहीं, कुछ नहीं है सर, सारी इंफॉर्मेशन सभी को है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि फेसबुक को पता है कि कौन कब क्या करने वाला है। वो इन जितने भी यूजर्स होते हैं सबकी एक्टिविटीज ट्रैक होती है। आप चाहे पेज लाइक कर रहे हो, किसी पे क्लिक कर रहे हो, कोई इमेज पे क्लिक कर रहे हो, किसी की प्रोफाइल ओपन कर रहे हो, आपका ना जब आप फेसबुक की खुद की प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ एक्टिविटीज नाम से एक्टिविटी लॉग का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड होता है, राइट। तो उनको पता होता है कि कौन सा यूजर कब कितना उसका परचेज का एवरेज साइकिल है, कौन कौन सी चीजें वो परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर सकता है। तो आप जब कन्वर्जन का चलाते हैं ना, तो सबका प्राइसिंग, ट्रैफिक का चलाते हैं तो उनका यूजर थोड़ा अलग होता है, कन्वर्जन का चलाते हैं तो उनका होता है ये सबसे बेस्ट ऑडियंस है जो परचेज करेगी, ठीक है। तो वो अलग अलग बकेट में सारी ऑडियंस एक तरीके से होती है। तो तो वो ये आप बताइए बताइए प्लीज कंटिन्यू। तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कुछ तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और क्या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आपका है जो मार्केट में चल रहे हैं, तो वो भी बहुत सारी चीजें मैटर करता है। थैंक यू। सो संतोष जी, आप बोलना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक, पहले ट्रैफिक ऐड चलाएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आई बॉल्स मिलेंगे, जो लोग प्रोडक्ट पेज को एक्सपोज हो जाएगा। Then what happens is you can later on maybe run remarketing, do remarketing with those हाँ, existing आप items. जो 10,000 आए, 10,000 पे आप रीमार्केटिंग कैंपेन चलाइए, Because कन्वर्जन आएगा। जैसा आप पहले बोल रहे थे कि मोस्ट ऑफ द पीपल परचेज इन 12 days, तो आपको एटलीस्ट टच पॉइंट्स होने चाहिए, 2-3 टच पॉइंट जो लोगों के साथ फिर से उनको प्रोडक्ट दिखाया जाए कि बॉस आपके ये प्रोडक्ट आप देखिए फिर से, लाइक दैट। सर जो मैंने बताया प्रोडक्ट की साइकिल, ठीक है, कि वो कस्टमर की साइकिल के 12 दिन से 13 दिन में 80% क्लोजर हो जाता है। बट ये वेरी करता है प्रोडक्ट के प्राइसिंग टू प्राइसिंग, या ठीक है। अगर इम्पल्सिव बाइंग का प्रोडक्ट्स है, लाइक कि एक बार मेरे को ऐड दिखा तो मैं गया, मैं परचेज कर लिया, मेरे को फिर 4 दिन 5 दिन का वेट नहीं करना, ओके, ठीक है। तो इम्पल्सिव बाइंग की बात करें इंडिया में तो आप 1,000 रुपए से नीचे के मान लो प्रोडक्ट्स, फट ठीक है। से खरीद लेते हैं। हाँ, तो अब आपको ये चेक करना है तो आप एट्रीब्यूशन में जाकर, कन्वर्जन विंडो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट एट्रीब्यूशन में, फर्स्ट डे वाले एट्रीब्यूशन में परचेज है या 7 डेज वाली में है या उससे बाद वाली में। तो आप कैलकुलेशन के बेस पे जब आप ऐड चलाएंगे तो वहां पे वो पूछता है कन्वर्जन विंडो कितने दिन की रखनी है, 1 डे व्यू, 1 डे क्लिक, 7 डे व्यू, 7 डे क्लिक। तो वो सारी चीजें करनी है। तो उससे क्या होता है ना, फिर वैसी ही ऑडियंस आपके लिए वो बनाता है पिक्सल में। ओके, समझ गया समझ तो गया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सर, अगर मतलब डिस्कशन पे बैठा जाए आप में तो 3-4 दिन लग जाएंगे फिनिश होने में। या डेफिनेटली, बट या डेफिनेटली जितना आपने बोला है, आई थिंक दास जी को कुछ कुछ इंसाइट मिले होंगे। यानी बहुत इंसाइट मिले। आई थिंक नोबडी टचेस दिस टॉपिक। एवरीबॉडी इज सेइंग कि फेसबुक में ऐसा कर दो वैसा कर दो। एंड समटाइम्स आई फील कि फेसबुक आजकल जितना तंग कर रहा है सब लोगों को, मे बी वन डे फेसबुक विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर फेलोज। ये नो, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली डिफरेंट मार्केट में बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे। एंड अभी तो हम लोग गूगल से भी मतलब काफी अच्छे प्रोडक्ट्स, मैं अपैरल इंडस्ट्री का ही कर रहा हूँ, अच्छा। एंड वी आर नियरली क्लोजिंग 20 lakhs in a month only from the Google। ओके। प्रीपेड है 4 का अराउंड 3.78 या 3.7 का ROS है प्रीपेड का। ओके। तो कर रहे हैं, सिर्फ गूगल ही चला रहे हैं। अच्छा सर, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स का जो आप बोल रहे थे कि
ऐसे कोई पेमेंट का एग्रीगेटर है और वन हैज टू गो टू से पेटीएम सेपरेटली एंड सम बैंक सेपरेटली एंड ऑल दीस थिंग्स, सर या वो कोई एग्रीगेटर भी है? आपको चेक करना पड़ेगा। वो वैसे बहुत सारे ऐसे पेमेंट गेटवे हैं जहां वो सारे ऑप्शंस वो दे देते हैं, ओके, राइट? अच्छा, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो शॉपिफाई के साथ कुछ डिफॉल्ट भी है क्या, ऐसा कुछ एग्रीगेटर्स? नहीं है उनका, एटलीस्ट बेसिक में तो नहीं है। ओके, बेसिक में नहीं। या आपका क्वेश्चन था वो पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर्स था। आदित्य अग्रवाल का एक क्वेश्चन था, न्यू ई कॉमर्स होम पेज फॉर न्यू कंपनी। आदित्य जी, क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या डिटेल में, लाइक व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्या पूछा है सर ने? न्यू ई कॉमर्स होम पेज फॉर न्यू कंपनी बोल के बोल रही, नॉट कैन यू हेल्प अस, क्या बोल रहे थे? आई वाज नॉट वेरी क्लियर। Aditya, if you're able to listen and all, you can just clarify this thing. And meanwhile, we'll once have a look at Facebook to see one question is there. Uh, so yeah, there are people talking about these things, like one Radhika Kakkar is saying, wow, we need one more session like this. Okay. And yeah, one thing, one question is, would like to know how e-commerce store can reduce the RTO. Like, is there any technology that we can use to reduce RTO? मतलब क्या समझ में नहीं रिटर्न आया। टू ओरिजिन होते सर, जो रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं। रिटर्न वाला, तो ओके बेसिकली अब क्या करना है कि शॉपिफाई आपको ऑप्शन देते हैं, ओके ठीक है? आप पहले चेक करिए कि आपके रिटर्न सबसे ज्यादा किस सिटीज या किस स्टेट से आ रहे हैं, राइट? ओके तो एक तो तरीका ये है कि वहां पे आप अपने ऐड दिखाने बंद नहीं करिए, आप वहां सीओडी बंद कर दीजिए, ओके, राइट? स्पेसिफिक रीजन के लिए। स्पेसिफिक पिन कोड पे, रीजन पे, जहां भी बंद करना चाहे आप बंद कर सकते हैं। शॉपिफाई में ऑप्शन है, अच्छा ठीक है? जो भी वहां पे ऑप्शन है, आपका नहीं दिखेगा। आप जो भी लॉजिस्टिक कंपनी यूज कर रहे हैं, इवन उनके भी प्लगइन्स में होते हैं, राइट? तो ओके आप एक तो ये कर सकते, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ऑर्डर लेने के बाद आप अपनी टीम से एक कंफर्मेशन कॉल करा लीजिए करिए। ये ओके 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरी, आप अपनी लॉजिस्टिक कंपनी पे हमेशा प्रेशर रखिए। अच्छा ये 3 तरीके से आप 5-10% तक कम कर सकते हैं। ओके। हाँ, Oh, Aditya is saying, like, he's asking the question, I'm going to start a new company. What kind of information or format we should follow? And can you help also for single product base, we should go with e-commerce store or Amazon, like single product, they should go with e-commerce store or Amazon. Amazon versus e-commerce store की बात कर रहे हैं, and एक basic guideline की बात कर रहे हैं आदित्य जी, like they want to start something new. So yeah. अब ये क्या डिपेंड कहना करता है होगा? कि सिंगल प्रोडक्ट के लिए आप जा रहे हैं तो वो इंफॉर्मेटिव जाएगी साइट, राइट? जैसे अभी हम लोगों ने बात करी प्रोडक्ट पेज की, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कम कम रखी, ठीक है? क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट पेज में सारी इंफॉर्मेशन रखनी थी और ज्यादा बिलो द फोल्ड नहीं जानी थी चीज, राइट? मगर अगर आप सिंगल प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं तो आपको एक फनल क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है? आप सिंगल प्रोडक्ट के लिए फनल क्रिएट करिए, उसके थ्रू जाइए। और रही बात ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक एड की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सिंगल ई कॉमर्स स्टोर के लिए, मतलब प्लान ऑफ एक्शन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? कि मैंने अभी बहुत सारे फनल्स आती हैं सिंगल प्रोडक्ट के लिए, अप टू 10 प्रोडक्ट्स के लिए। आप गूगल पे सर्च मारोगे सिंगल प्रोडक्ट्स सेलिंग स्ट्रेटजी या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फॉर फेसबुक और गूगल, तो आपको बहुत सारी फनल्स मिलेंगी। तो आप एक बार उन फनल्स को चेक करिए, आप देखिए कहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उस फनल से अपने प्रोडक्ट को, राइट? और आप Amazon पे भी जा सकते हैं। अभी जैसे जो हम लोगों ने 5-6 महीने में बहुत सारी चीजें देखी हैं, कुछ हमने स्टोर हैंडल कर रहे हैं, फेसबुक पे सेल नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, राइट? हमने उठा के उसको Amazon पे PPC पे डाल दिया, Amazon गिविंग गुड रिजल्ट्स, क्योंकि वहां पे वो स्पेसिफिक कोई सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट है परचेज करने का, और वहां पे PPC चल रहा है तो वो कन्वर्ट होते हैं।
तो Okay. आप दोनों जगह पे जाइए, मैं सजेस्ट करूंगा आप दोनों जगह जाइए। कहीं एक जगह पे थोड़ा सा लगे, क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट करके कुछ प्लान करके एक स्टोर खड़ा कर रहे हैं, तो आप दोनों जगह जाओ। And Amazon में लोग मतलब if he's asking a question like we had a one session in the starting, like Amazon में क्या you have to also think about Amazon works differently, उनका advertising, उनका positioning, हाँ, अभी अभी उनका उन्होंने rate cut. वो भी अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि पहले क्या होता था कि पहले आप अपने पैसे लगा के एडवर्टाइजिंग कर सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने अभी ऑप्शन दे दिया है कि जो भी आपका सेल होगा, ठीक है, आप ऐड करना चाहते उतने का आपको ऑफर कूपन हम लोग दे देंगे, आप उतने का ही चला पाएंगे, उससे ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं कर सकते हैं। अच्छा. तो एक ये रिस्ट्रिक्शन दे दी है, राइट। जैसे हम फेसबुक पे दिन भर के 5 लाख 6 लाख 10 लाख खर्च कर देते हैं किसी किसी क्लाइंट। आप विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं आपको प्रोडक्ट को कैसा हाँ हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, बट वहां पे विजिबिलिटी बढ़ सकती है। तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि अगर आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है तो ठीक है, आप एडवर्टाइज करना चाहते हो तो हम 1000 का कूपन आपके ऐड के लिए दे देंगे, आप एक्स्ट्रा नहीं खर्च कर सकते। थोड़ा वो चैलेंजेस है उधर। या लिमिटेशंस बहुत है अमेजोन में, बट पीपल थिंक दैट वो ऑटोमेटिक है कि अमेजोन में डाल देंगे तो खर्चा अपने सेल्स अपने पाएंगे, तो कभी नहीं होने वाला है। अब होता क्या है ना कि आप नए हो, आप स्टोर चलाना चाहते हैं, जैसे सर बता रहे हैं हमारी सेल्स नहीं आ रही है, अपैरल हैंडलूम्स में है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये मार्केट प्लेस पे है कि नहीं है। तो जब आपको टेस्ट एंड ट्राई करने हो प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि क्या बिकेगा नहीं बिकेगा, आप Amazon और जो भी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप एलिजिबल हो लिस्ट करने के लिए, वहां कर दीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा 3-4 महीने का, और आपको पता चल जाएगा कि उधर से क्या बिक रहा है। तो आपको वो बोलते हैं ना विनिंग प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग में विनिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये मूव हो रहा है, तो इसको हमको अलग से भी कहीं पे ऐड चलाना चाहिए, फेसबुक या गूगल कहीं भी। एंड ऑलरेडी अगर मान लो उनका प्रोडक्ट अमेजोन में ऑलरेडी किसी का सिमिलर प्रोडक्ट है अमेजोन में जो अच्छा चल रहा है, वहाँ अमेजोन में लगता है कि इसका अच्छा रिव्यूज है, नंबर ऑफ, बिकॉज अमेजोन का नंबर ऑफ रिव्यूज से थोड़ा अंदाजा लगा सकता है कि सेल्स कितना होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यू कैन ऑल्सो गो बाय दैट गट फीलिंग एंड सी उस टाइप का प्रोडक्ट अमेजोन में डाल के देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखना चाहिए सर, देखना चाहिए, देख के बिना कुछ नहीं बोल सकते, वो बात सही है। हाँ। तो ये सब तो बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें R&D करने की, एजम्पशन पे नहीं चलना चाहिए, देखना चाहिए। एजम्पशन पे नहीं चलना चाहिए। एक और क्वेश्चन है संतोष जी, I have an e-commerce store, how to put in place customer journeys in the website? Customer journeys in the sense, Radhika ji, what is that you want to say? Customer journeys in place, matlab you want to track what customer is doing or what, like how to put in place customer journeys in the website? मुझे वही लगता है कि वो she want to track how a customer is engaging with the products or what she's doing. So it's all about analytics, I guess. Santosh ji? जितना सिंपल प्रोसेस रखेंगे आप अपनी साइट का, प्रोडक्ट के विजिबिलिटी, CTA और इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी है, वो बहुत ही सिंपल और प्रेजेंटेबल वे में रखेंगे। एंड मतलब प्रोडक्ट पेज, चेकआउट पेज आप सिंपल रखिए। तो जो मैंने 4 स्टेप दिखाए थे, राइट, लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज, एड टू कार्ट, परचेज, ये 4 स्टेप से ज्यादा होता भी नहीं है। और राधिका और थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे तो मैं बता पाऊंगा। हाँ, उनका क्वेश्चन थोड़ा सा कस्टमर जर्नी सर फनल की बात कर रहे हैं, तो सेम वही आप जो बात कर रहे थे ना। हाँ, अब वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फनल्स वेरी करती है, ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, नेटफ्लिक्स का ले लेते हैं, ठीक है। ओके। नेटफ्लिक्स क्या करता है, वो अपने इंटरेस्ट बेस पे ऐड चला, आपने फेसबुक पे देखा, ठीक है, उनका आइडिया वाला चलता है, ठीक है, फनल, ओके, कि पहले अवेयर कराया, फिर इंटरेस्ट जनरेट हुआ, फिर डिजायर, फिर परचेज हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो ऐड दिखाते हैं, ठीक है, ऐड दिखाते हैं। इसके बाद आप ऐड क्लिक करके आप जाते हैं साइट पे, ठीक है, तो वहां पे एक पॉपअप दिखाते हैं 1 मंथ फ्री, राइट, 1 मंथ फ्री, 1 मंथ फ्री दिखाते हैं, आपका तुरंत बनता है यार, ठीक है, 1 महीने का फ्री बन रहा है।
राइट। वो फर्स्ट पेज में नहीं दिखाते हैं, फर्स्ट पेज में आप ऐड देखोगे तो वहां पे नहीं दिखाते हैं, ठीक है। वो सेकेंड पेज में दिखाते हैं, फिर वही 1 मंथ वाले को लेके आपको रीटारगेट करते हैं, ओके। और फाइनली आपको कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट पेज में, प्रोडक्ट के सेक्शन में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती है। ओके ओके। यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं लोग, थोड़ा सा इनसे मिलता जुलता। क्या करते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट पेज पे आया, आपको दिखाया, आपने एड टू कार्ट किया, आपने परचेज नहीं किया, ओके। ठीक है, तो जब रीमार्केटिंग एड चलाते हैं तो उनको हम 5% 10% ऑफ दे देते हैं। या हम्म। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू रन एड्स ऑन फेसबुक ऑफ Amazon लिस्टिंग्स? पहले चलते थे, अभी का मैं नहीं बता सकता हूँ, शायद अकाउंट बैन हो जाए। अच्छा, ऐसा है क्या? रिस्की है। हाँ, रिस्क है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अमेजोन, ये फेसबुक अब प्रेफर नहीं करता कि आप फेसबुक पे ऐड चला के आप मार्केट प्लेस पे लैंड करा रहे हो या कहीं और ट्रैफिक कर रहे हो, तो थोड़ा सा इशू है। बहुत केसेस में चलता है, जब जब तक उनका बोट नहीं पकड़ रहा है तब तक आराम से चला सकते हो। ओके, यू कैन टेक सम रिस्क इफ यू वांट टू टेक रिस्क। यस। मतलब रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, बट इट इज नॉट अलाउड एक्चुअली। तो पहले सब कुछ अलाउड था सर, पहले तो इतने लूप होल्स थे, आप पूछो मत फेसबुक के। बट अभी तो धीरे धीरे सब लीकेज बंद कर रहे हैं, अभी 2-3 साल लगेंगे बंद होने में लीकेज, तब वाइट लेवल होगा। फेसबुक क्यों क्यों नहीं मतलब अलाउ कर रहे हैं Amazon पे, मतलब Amazon का लिस्टिंग ये करने के लिए? सर एक इनके कोई अलग लॉजिक अलग है पॉलिसीज होती है, पॉलिसीज बहुत लंबी है, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, वी डोंट नो। हाँ, सो वो आदित्य। होता है क्या है, मैं बता दूं, आपने हाँ, टेक सपोर्ट का नाम सुना है? टेक सपोर्ट। हाँ, कॉल ओनली एड्स और वो सारा, ठीक है, तो लोग इधर से ऐड चला के, वो फ्रॉड वाले केसेस ज्यादा हो हाँ हाँ जाते हैं, हाँ, ओके। ठीक है। वो कि भाई जैसे फेसबुक पे भी फेसबुक का भी चला देते हैं लोग, फिर क्या किया, इधर से चला दिया, फिर कुछ ऐड दिखा रहे हैं, इधर से ट्रैफिक ले जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, फिर वहां से क्लॉकिंग करके किसी और जगह। तो मेन यही रीजन है, मतलब वो थर्ड पार्टी पे ड्राइव करने का ट्रैफिक। इसीलिए तो अभी डोमेन वेरिफिकेशन भी ये लोग करा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, आपका खुद का लैंडिंग पेज वगैरह है, आपका खुद का है तो यू आर वेरीफाइड। अगर Amazon में अगर कहीं लिस्टिंग है तो वी डोंट नो कि क्या है वो। आपको, अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो आपको अपना डोमेन वेरीफाइड करना पड़ेगा, इट्स अ कंपल्सरी नाउ, अदरवाइज आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ओके, गॉट अभी इट। कंपल्सरी कर दिया है, समझ गए मतलब सर। वाइड लिस्टिंग करनी है आपको। नहीं तो फ्रॉड फ्रॉड कर सकते हैं लोग, सही बोले। तो ये है। एंड आई थिंक आदित्य पूछ रहे हैं। बेसिकली इन्फ्लुएंसर और रीसेलर एड्स, basically influencer or reseller or ads, this has customization option based in India. आदित्य का एक क्वेश्चन है कि where I can find the people who has e-commerce store who can put ads for my product. I'm into kids product for 12 year, क्या लिखा है, प्रोडक्ट फॉर एज ग्रुप न्यू बॉर्न टिल 12 अच्छा, इज years. आस्किंग ए डिफरेंट थिंग। वो पूछ रहे हैं कि मैं कोई ई कॉमर्स स्टोर ढूंढ सकता हूँ जहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकूँ। शी इज हैविंग द प्रोडक्ट। नहीं, वो मार्केट प्लेस आपको गूगल पे ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, वो तो अमेजोन है, बाकी यू ट्राई टू गो फॉर फर्स्ट क्राई और मामा अर्थ और व्हाट सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स जाके लिस्ट करने का देखना पड़ेगा। हम्म। और एल्स यू शुड ट्राई टू कोलैबोरेट विद पीपल समवेयर हु इज डूइंग दैट। वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जैसे इन्फ्लुएंसर रीसेलर एड्स की बात कर रहे हो, तो इन्फ्लुएंसर्स तो आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं यूट्यूब में, या तो नहीं, अगर आपके फेसबुक पेज पे 10,000 प्लस लाइक हैं तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू कोलैबोरेट विद द इन्फ्लुएंसर, यू विल सी द ऑल एंगेजमेंट डेटा, और बाकी कितने उनके फॉलोवर्स हैं, हाउ मच दे आर एंगेज विद द यूजर, मतलब अपने फॉलोवर्स से कितना एंगेज हैं, कितना परसेंटेज है, तो यू कैन चेक, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू दे। अच्छा ओके। हाँ, बट वो सबके लिए, अब जिनके 10,000 होंगे शायद उन्होंने सुना होगा कि हाँ ऐसा भी फीचर है, तो शायद यूज करते होंगे। 10,000 प्लस का मिलेगा? हाँ, 10,000 प्लस पे आपको ऑप्शन अवेलेबल करा देते हैं, कोलैबोरेट विद द इन्फ्लुएंसर।
Okay. आप जिस कैटेगरी के जितना देखना है आप चेक कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि अभी क्या है, लोग पैसे दे के फॉलोवर्स बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है, पता चले किसी के 1 लाख फॉलोवर्स आपको दिख रहे हैं, उसमें से उन्होंने 80,000 खरीदे हुए हैं, तो कितनी एंगेजमेंट होगी आपको तो पता नहीं चलेगा, मैनुअल तो आप चेक नहीं कर पाओगे पूरा उनके प्रोफाइल का। तो उससे बहुत फायदा होता है फेसबुक से। इवन अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर कंपनी से भी कोलैबोरेट कर रहे हैं और ये वाला ऑप्शन जाके चेक कर ले रहे हैं, वो आपको बताएगा हाँ इस से मैंने आपका कोलैबोरेशन कराया है, तो आप चेक कर सकते हो उसकी कितनी एंगेजमेंट है, क्या है चीजें। तो वो आपके लिए थोड़ा सा पैसे बच जाएंगे आपके, अब अच्छा आपको मिल जाएगा। Aditya, there is one Radhika is there. She's running Yummy Mummies, and she's saying that we can collaborate for kids' clothes. It's a good option. I can connect you guys both on a WhatsApp group or a Facebook chat. हाँ कर सकते हैं। That's very interesting. She's on Facebook. She's telling she's running a thing called Yummy Mummies. Yeah. ठीक है, चेक चेक कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है सर। No. Means I will, I'll connect them both. Not an issue because they're thinking that she's there. She's also into e-commerce. She's doing that thing. हाँ, And मैम को मैं जानता हूँ। you know her. Okay. हाँ। अच्छा, okay. अच्छी बात है. Yeah, I think we could finish the questions. And yes, I'll be happy to join with Radhika. Yeah, Aditya ji, I will connect you both on WhatsApp. You can talk with each other and do, yeah. ये आज के सेशन में लग रहा है सिर्फ हम लोगों ने वेबसाइट ही कवर करी है। कौन सा? ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ हम लोगों ने कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का 1 पार्ट कवर किया वेबसाइट। इसके अलावा आप एनालिटिक्स पार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग पार्ट हो जाएगा, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या फेसबुक एनालिटिक्स हो। उसके अलावा फिर ड्रॉप आपका शिपिंग या इन्वेंट्री मॉडल, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं। ठीक है, अभी मैंने ये पार्ट कोई कवर नहीं कर रहा था, सब लोग फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कवर कर रहे थे, मैंने बोला ये थोड़ा सा ठीक है। दिस इज एक्चुअली, देखिए संतोष जी, काफी निच है टॉपिक, बिकॉज ई कॉमर्स इटसेल्फ इज अ निच टॉपिक एंड वी आर कवरिंग वन मोर टॉपिक। जो लोग ई कॉमर्स से बहुत ही रिलेटेड है, जो लोग ऑलरेडी थोड़ा अपना हाथ पैर चलाए हुआ, उन्हीं लोग को ये कनेक्ट होंगे। बाकी हर कोई नहीं जान सकते, नहीं समझ पाएंगे, ना कनेक्ट होंगे इसके साथ। तो ये जो वीडियो अपना अवेलेबल होंगे यूट्यूब में भी अपना, एंड अपना ग्रुप में भी रहेंगे। सो इट इज लाइक ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू शेयर टुडे। तो जो आपने स्लाइड डेक भी बना रखा है, एंड वील शेयर दिस विद दिस गाइस, एंड इट विल बी वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर दैट। ये स्लाइड्स मेरे ख्याल से मेरे को 2-3 घंटे लगे थे। मैंने R&D थोड़ी करी थी एक्स्ट्रा, बट वो चीजें मैंने बताया ना, सिस्टम मेरा आपको कॉल कर रहा, सिस्टम मेरा क्रैश हो गया था बार बार। फिर मैंने कहा ठीक है, जितना बना है उतने में ही करते हैं। डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। वो एक था, एक और आपके पास एक एक्सक्लूसिव लिस्ट था ना, जो 150 पेजेस का, हाँ, 150। वो आई विल शेयर इन दिस फाइल ना, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं इसी में कर देता हूँ। इट विल बी वैल्यूएबल फॉर पीपल। हाँ हाँ, मैं इसी में कर देता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने के लिए काफी काफी टाइम लगा होगा डेफिनेटली। और मोस्टली तो मेरे को मतलब पता है चीजें। नहीं, आप बहुत दिन से इंडस्ट्री में है बोल के आपको इजी लगता है, बट न्यूबीज के लिए डेफिनेटली इट इज नॉट इजी टू गेट। ऑब्वियसली ना, काफी समय से आप टाइम निकाल रहे, तो आपको। हाँ, वो चीज है। 1 मिनट में मैं पीपीटी और वो पीपीटी का पीडीएफ, मैं पीडीएफ और चेकलिस्ट दोनों शेयर कर देता हूँ। ओके। ठीक है, पीपीटी शेयर हो गई है, पीपीटी का पीडीएफ हुआ है शेयर, एंड 1 पेज वाला भी हो गया है। ठीक है, जो लिस्ट थी, चेकलिस्ट थी, वो कर दी है मैंने। ठीक है सर, हो गया शेयर वो। डेफिनेटली। Yeah, Das is asking about contact, how they can contact you
for anything like related to information or maybe to business, whatever it is like. कर सकते हैं सर, कैसे भी नंबर्स मेरा आप शेयर कर दीजिएगा सर से. हाँ. Okay, Das ji, I will share the information of संतोष जी. एक मिनट, मैं एक्चुअली फोन साइड पे रख लिया, बट व्हाट्सएप मेरा अभी ओपन है इसमें. Santosh ji, do you people guys also provide consultation? Or only- Yes sir. So yeah, definitely. We are providing consultation in analytics and advertising part also. Okay. तो वो दोनों चीजें कर रहे हैं हम लोग. So then, boss, you can consult Santosh ji. Of course, they can really guide you exactly what you can do. If you are not ready to opt for the services or something, the consulting can actually give you really right direction. What should you do and all. हाँ, obviously there वो is सारे सेक्शन पे डिस्कशन होता है, इंक्लूडिंग अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर नहीं किए. प्राइसिंग मॉडल कैसा रखना चाहिए आपको साइट पे, ऑफर्स कैसे रखने चाहिए, तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी इसमें भी मिसिंग थे. तो वो चीजें हैं. बाकी आपका साइट का यूआई कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट पेज कैसा, मोस्टली चीजें मेरे ख्याल से दास जी को या इस सेशन में मैंने बताई हैं. कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो और हैं, तो कभी कवर करेंगे हम लोग. हाँ, वो तो डेफिनेटली कोई चीज ऐसा होता है कि 1-to-1 ही कवर होता है. मतलब everything cannot be covered in a live session or maybe in a group. आप ही बॉम्बे बेस्ड हैं क्या? He is not Mumbai, I think he's in Delhi. I'm in Noida, Delhi NCR. Okay. Okay, sir. Any question now? Yeah, I think we are done with this. So thank you guys, and just thank you for staying back. And I think we could add some value because we are doing this kind of niche kind of things, and this was like this month is for e-commerce. So yeah, Devdutt ji saying great session, thank you. And on Facebook we have a few more guys. I also want to thank them also for this for staying back. So Santosh ji, it was really a great session, and I will also do a watch party of this in our group again, because many people missed the session today, I guess, because some people were actually attending other sessions, and maybe Saturdays nowadays people are not inclined. We may have to change the timing, I guess, because now Saturdays people are actually going out, movies and all. Initially it was working. Saturdays हमारा अच्छा चलता था. Saturdays was the time where we should do late night sessions and all. So एक watch party फिर से करूँगा, and in that watch party if there are questions we will try to address later on. Just sure. Thank you so much, sir. Thank you, Santosh. Thanks a lot. Really, it was Thank really you. Thank you, everyone. Thank you. Actually, we have to thank you. Thank you, Aditya ji. You can reach out to Santosh ji or me for any kind of guidance. I'll do We that. are there to provide you. Like I can point you to the right people for anything is there related to business setup or whatever, like e-commerce or whatever, digital marketing related, any stuff. And thank you, Radhika ji. Thank you, Amit Sharda. Thank you, Rafikul. Thank you, Mishra ji. Thank you, everyone who's on Facebook also. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Good night. Good night.